Hello dear learners. In the previous lecture, we discussed about the process of elongation in detail. Like we discussed about the process of elongation for the transcription in which we know the RNA transcript or the polymerization of RNA on the basis of DNA template strand. This process is carried out in the elongation step. Further, there is a process of termination to stop the transcription, and for this purpose it is regulated by some of the protein signals or the termination signals. There are two types of termination signals that are required to stop or to terminate the process of transcription. You all know, when we studied about the DNA replication, there are also three steps: initiation, elongation and termination, in which when there is a termination process, we have to stop the DNA replication. There are certain signal sequences like TER-TUS sequence, in which termination and TUS utilization site or the termination utilization site, and TER protein that recognizes this site to stop the process of DNA replication. And there is a involvement of topoisomerase 4 enzyme to stop the process of DNA replication. It is for the DNA replication. Then if you have to study about the termination process of transcription, there are two different types of proteins mainly used, or the two protein dependent mechanism used. First is row dependent termination and other is row independent termination, or row dependent termination and row independent termination. So what do you mean by row? Row is a protein that required to stop the transcription process. So first we will study about the termination process by row dependent termination. That is, transcription termination is depend on row protein. So row dependent termination, that includes, this is the signal, or there is a signal by a sequence in the template strand of the DNA molecule, which are 40 base pair in length, and they are inverted repeat or they are hyphenated. This signal recognized by the termination protein, that is row factor, row protein factor. Row, it is an ATP dependent RNA stimulated helicase which binds to the signal, and thus RNA polymerase cannot move further. So it dissociates from the DNA and RNA duplex, and it will be going to release the nascent RNA. So in short, रो प्रोटीन और द सिग्नल सीक्वेंस, ये जो होता है ये डीएनए स्ट्रैंड में प्रेजेंट होता है. कुछ रिपीटेड इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लाइक 40 बेस पेयर इन लेंथ में जो होते हैं वो सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, और वो रिकॉग्नाइज करता है रो प्रोटीन या रो फैक्टर. अभी रो प्रोटीन जो है ये एटीपी डिपेंडेंट है. एटीपी डिपेंडेंट मतलब जो एनर्जी करेंसी है एटीपी. जब ATP, in the presence of ATP, rho protein is going to function. जब रो प्रोटीन और रो फैक्टर रिकॉग्नाइज कर लेगा डीएनए पर जो सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है और दो इन्वर्टेड रिपीट्स आर प्रेजेंट, देन रो प्रोटीन, इट इज़ एटीपी डिपेंडेंट, दैट स्टिमुलेट्स. अभी वो हेलिकेज जैसा एक्टिविटी दिखाएगा. हेलिकेज जैसा एक्टिविटी दिखाएगा मतलब जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड जो नया वाला आरएनए अपना बन रहा था इलोंगेशन प्रोसेस में, उसकी जो बॉन्डिंग है या उसकी जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है वो रो प्रोटीन उसको रिकॉग्नाइज करके हेलिकेज एक्टिविटी के द्वारा ब्रेक कर देगा, और उसके वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे मूव नहीं कर सकेगा. देन अगर आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पा रहा तो ऑब्वियसली पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है, मतलब न्यू न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो है वो ऐड नहीं हो सकते, और वो अगर ऐड नहीं हो सकते सो आपका
आरएनए डीएनए जो कॉम्प्लेक्स था वो टूट जाएगा, आपका जो नया वाला आरएनए बना था वो आरएनए उस बबल से, जो ट्रांसक्रिप्शन बबल था, आपने देखा होगा, अपन ने ओपन कॉम्प्लेक्स डीएनए का पढ़ा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, इस बबल से आपका आरएनए टूट जाएगा यहाँ से, और फिर आपका जो नसेंट आरएनए जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस इन विच टर्मिनेशन दैट ऑकर्स थ्रू रो डिपेंडेंट प्रोसेस or row factor that identifies the stop signal. So this is the termination of transcription by row dependent mechanism. Next is row independent termination of transcription. अभी इसके लिए आपको टू मेन मैकेनिज्म जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है रो इंडिपेंडेंट में। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन करना है तो यहाँ पे रो प्रोटीन नहीं है, तो अगर रो प्रोटीन नहीं है तो फिर वो रिकॉग्नाइज कैसे करेगा कि ये स्टॉप सिग्नल वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता तो फिर बॉन्डिंग जो है वो हेलिकेज एक्टिविटी नहीं दिखा सकता, और हेलिकेज एक्टिविटी नहीं दिखा सकेगा तो ऑटोमेटिकली आरएनए पॉलीमरेज मूव होता रहेगा, ट्रांसलोकेट होता रहेगा, और न्यू पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है, न्यू राइबोन्यूक्लियोटाइड एडिशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसके लिए फिर अगर ये रो इंडिपेंडेंट है तो फिर इसके लिए कुछ दो फीचर्स हैं। वन ऑफ द फीचर इज इट इज़ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ जीसी रीजन which is followed by an AT rich region. Thus RNA transcript of this palindrome is self-complementary sequence, permitting the formation of hairpin structure, hairpin like structure. And the second feature is highly conserved string of A residue in the template strand that are transcribed into U residue. Thus RNA transcripts ends within or just after them. So अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है आपका 5' to 3', जब आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन रहा होता है तो यहाँ पे जब रो इंडिपेंडेंट है, मतलब रो प्रोटीन नहीं है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। एक जो होता है वो आपका बन जाता है जीसी स्ट्रक्चर का कॉम्प्लीमेंटेरिटी। मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सबको पता होगा कि यहाँ से भी आप सेम पढ़ सकते हो, इस डायरेक्शन में आप उसको सेम पढ़ सकते हो, ठीक है, उसे अपन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कुछ डेट्स हो गए, कुछ नेम्स हो गए, जैसे वो पैलिंड्रोम होते हैं, ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन में जहाँ पे रो इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, वहाँ पे क्या होता है कि दो कॉम्प्लीमेंटेरिटी का रूल है, जहाँ पे जीसी रिच रीजन जो है वो फॉर्म कर देगा हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे जो बॉन्डिंग है इनके बीच में इतनी स्ट्रांग हो जाएगी जीसी रिच रीजन में, उसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो होता है वो होता है एडेनिन इज पेयर विथ यूरासिल इंस्टेड ऑफ डीएनए। इन द डीएनए देयर इज अ एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन by 2 hydrogen bond. Here in the RNA adenine pairs with uracil by 2 hydrogen bond, but यहाँ पे जो बॉन्डिंग है एडेनिन की यूरासिल के साथ इट इज़ वेरी वीक। ड्यू टू दिस वीक कॉम्प्लीमेंटेरिटी यहाँ पे वो बॉन्ड, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और उस रिलीज होने के बाद ये आपका जो पूरा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है वो उस बबल से निकल सकता है, ठीक है। सो फिर से एक बार बताता हूँ कि रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, क्या यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। फर्स्ट है यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जीसी रिच रीजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी ज़्यादा हो जाएगी और उसके कारण हेयरपिन स्ट्रक्चर बन जाएगा। हेयरपिन स्ट्रक्चर बन जाएगा मतलब रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। और दो सेकंड फीचर है हाईली कंजर्व स्ट्रिंग्स ऑफ ए रेसिड्यू इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड that are transcribed into U residue। मतलब जो टेम्पलेट है वहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर इज़ अ हाई रेशियो ऑफ एडेनिन, और जिसके वजह से एडेनिन पेयर हो जाएगा यूरासिल के साथ। यूरासिल के साथ पेयर हो जाएगा क्योंकि आपको पता है आरएनए में थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो एडेनिन की यूरासिल के साथ वीक कॉम्प्लीमेंटेरिटी रहेगी और उस कारण उनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और अपना ट्रांसक्रिप्ट जो है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट वो रिलीज हो जाएगा।
So this is the row independent process of termination of transcription. If you have any question related to the transcription process from the beginning or the basic concept of transcription, like a basic concept of transcription, RNA polymerase, initiation process, elongation process, termination process, you can ask in the comment section. Otherwise, you can ask in our WhatsApp group. Till then, thank you. Study for the process of transcription of prokaryotes. In the next lecture, we will see about the process of transcription in eukaryotes. Thank you.